Hello, my guys, welcome back. So, today it will be the last session of our seventh science chapter, which is living and non living thing. So, ये chapter में तो हमने different characteristics, different features of living things discuss किया. Alright. So, like living things, they need food to get energy. Okay. With that energy, we are living and we are growing. Then living things they need to breathe, श्वास लेते हैं वो लोग. देन लिविंग थिंग्स ग्रो, बड़ा होते हैं. लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट मतलब दे विल एलिमिनेट देयर बॉडी वेस्ट. लाइक इफ यू आर लुकिंग ऑन ह्यूमन बीइंग्स, हमारे बॉडी में देखें तो वी आर एलिमिनेटिंग द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फेसेस. ऐसे जो हमारा बॉडी से हमारा वेस्ट हमने एलिमिनेट करते हैं. ओके. Then if you are looking on reproduction, all living things can reproduce their own kind. मतलब अपना बच्चे को अपना तरह जन्म देते हैं. That's how we are maintaining a continuity of life on our earth. So without reproduction there won't be any living things on our earth. Okay. Then other point, living things move. They can move from one place to another. Living things can feel. Living things can respond to a change which is happening in their particular habitat. Okay. जो अपना एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज हो रहे हैं इसको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं और उसको रिएक्ट कर सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स को. ओके. देन लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ स्पैन. सो आफ्टर दिस लाइफ स्पैन दे विल डाई, वो मर जाएगा. देन इफ यू आर लुकिंग ऑन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स, all living things are made up of cells. Okay. All living things are made up of cells. That is the smallest unit of our body. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग में देखें तो they are made up of several elements, different elements and different compounds by chemical reactions. So if you are telling their building block, we can say it as molecule or atom, like that. Okay. Living things are made up of cells, and these non-living things which are made up of these molecules and atoms. Okay. So today we are going to take a look on difference between plants and animals. Difference between plants and animals. We know both are living things. Plants और animals दोनों important living things है हमारा अर्थ में. इसमें जो क्या क्या डिफरेंस होते हैं, so let us see. So before, in previous sessions we already completed different characteristics. Like in page number 83 you can find that table, difference between plants and animals. On the first column they have written the characteristics like nutrition, locomotion, growth, reproduction, excretion, and final one is respiration. Okay. So let us see how these characteristics are different in plants and animals. Okay. So if you are looking on first one, nutrition. Nutrition का मतलब क्या है? Nutrition, it is the process of obtaining food for proper growth and proper health. Okay. जो हमको एनर्जी चाहिए, जीने के लिए एनर्जी चाहिए. So we are getting that energy from the food that we are eating. Okay. So that is nutrition, process of obtaining the food for health and growth. If you are looking on plants, they are known as autotrophs क्योंकि वो लोग अपना खाना बनाता है. राइट. प्लांट्स अपना खाना बनाता है. दे कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम वाटर, सनलाइट, देन द मिनरल्स विच आर प्रेजेंट ऑन सॉइल. सो अपना खाना, हमारे अर्थ में सिर्फ प्लांट्स अपना खाना बनाता है. दैट्स वे वी आर कॉलिंग इट एज ऑटोट्रोप्स. लेकिन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, ये सभी ऐसे नहीं होते. वी आर एक्चुअली डिपेंडिंग प्लांट्स और वी आर एक्चुअली डिपेंडिंग अदर एनिमल्स. ओके. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग एनिमल्स आर हेट्रोट्रोप्स. एनिमल्स को हेट्रोट्रोप्स कहते हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. हमको अपना खाना नहीं बना सकते हैं. हमको वो लाइक सनलाइट से, वाटर से डायरेक्टली खाना नहीं बना सकते हैं. राइट. वी आर एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन प्लांट. हमने प्लांट्स और जो एनिमल्स में डिपेंड करते हैं हमारा खाने के लिए. ओके.
सो दैट्स वाई एनिमल्स को हमने हेटेरोट्रोप्स कहते हैं, प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स कहते हैं. सेकेंड वन इज लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब हमको पता है ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं. सो दैट इज लोकोमोशन. सो इफ यू आर लुकिंग ऑन प्लांट्स, प्लांट्स को एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि वो एक सॉइल में एक पर्टिकुलर प्लेस में फिक्स्ड होते हैं. लेकिन दे कैन शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट्स, लाइक वी ऑलरेडी टोल्ड द मूवमेंट ऑफ ममोसा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट का मूवमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. लाइक इसको टच किया तो क्या हो जाएगा, दे विल ड्रूप. ओके. लेकिन एनिमल्स ऐसे नहीं है. एनिमल्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर हंटिंग and for shelter and for other kind of things. They can move from one place to another. So the next one is growth. Growth मतलब हमको पता है all living things grow, सारे living things बड़ा होता है. The process by which a organism increase its size, that is actually we call as growth. So if you're looking on plants, they grow throughout their lives. Okay, plants they will grow throughout their lives. And if you're looking on animals, they will grow up to a certain age only. Okay, पूरा लाइफ स्पैन वो बड़ा नहीं होते हैं. लेकिन प्लांट्स ऐसे नहीं है, दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ्स. एनिमल्स दे ग्रो अप टू ए सर्टन एज, वो एज के बाद वो बाद में उसका हाइट बड़ा नहीं होते. लेकिन वी कैन वेरी द वेट, हमारे बॉडी वेट तो हमको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा हाइट हमको चेंज नहीं कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन. सो इफ यू लुकिंग ऑन प्लांट्स, प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर सीड्स, स्टेम, रूट, ऐसे वो डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स का, उधर से रिप्रोड्यूस करते हैं. एनिमल्स को देखें तो वी हैव ओनली 2 मेथड्स. फर्स्ट वन इज लेइंग एग्स, अंडा देते हैं, और गिविंग बर्थ, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देता है. ओके. नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मतलब द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग बॉडी वेस्ट. बॉडी वेस्ट हमने हमारे बॉडी से एलिमिनेट करते हैं. लाइक इफ यू आर लुकिंग ऑन प्लांट्स, प्लांट्स को देखें तो दे विल एक्सपेल, दे विल एलिमिनेट द वेस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर एंड गैसेस एंड सेक्रेशंस लाइक गम. ओके, गम के तरह, लैटेक्स के तरह, सैप के तरह अपने बॉडी से वेस्ट रिमूव करते हैं. एनिमल्स का जो excretion already I told you, like in the form of urine, sweat and carbon dioxide. So now the last kind of characteristic which is respiration. respiration हमने पहले डिस्कस किया था. इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, लाइक इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसे ये प्रोसेस सभी एक साथ हमने रेस्पिरेशन कहते हैं. ब्रीथिंग, इट इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, द टर्म्स आर एंटायरली डिफरेंट. ओके. सो इफ यू आर लुकिंग ऑन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स को देखें तो देर आर स्मॉल पोर्स ऑन देयर लीव्स. ओके, देर आर स्मॉल पोर्स ऑन देयर लीव्स. बहुत छोटा छोटा होल्स होते हैं, हमारा आँखों से हमको डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ टाइनी पोर्स दैट आर नोन एज स्टोमाटा, इसको हमने स्टोमाटा कहते हैं. दैट स्टोमाटा हेल्प्स देम टू रेस्पायर. ओके. लेकिन एनिमल्स में देखें तो वी हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. लाइक फिशेस को देखो, दे हैव गिल्स. ओके. मैमल्स को देखें तो दे हैव लंग्स. इंसेक्ट्स को देखें तो दे हैव स्पाइरकल्स, बुक लंग्स. देन अर्थवर्म को देखें तो दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. ओके. सो ऐसे एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. So that's all for today's session. We just learned the difference between plants and animals. Okay. Let us wind up today's session. Thank you, my guys.